बच्चे नेक्स्ट आप शुरू करनी है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਥਿਊਰੀ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਥਿਊਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਵਾਸ ਡਿਵੈਲਪ ਬਾਈ ਹੰਡ ਐਂਡ ਮੋਲਿਕਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ? ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। To explain the formation of a covalent bond. ठीक है, this approach is based on the formation of molecular orbital rather than the atomic orbital। इनदे च अपने कोले की बनते हैं molecular orbital, atomic orbital है ਜਿਹੜੇ ਉਹ नहीं बनते। ठीक है बच्चे, ਤਾਂ atomic orbital ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, electron in the molecule is considered to under the influence of all the nuclei present in the molecule। ठीक है बच्चे, और इस तो बाद नेक्स्ट है कहते पोस्टुलेट्स। बेसिक आइडिया ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेसिक आइडिया ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है बच्चे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਵੈਨ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਆਫ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਟੂ ਅਟੋਮਿਕ ਔਰਬਿਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਅਟੋਮਿਕ ਔਰਬਿਟਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਆਲ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਇਟ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਪੋਲੀਸੈਂਟਰਿਕ। ਸੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਆਰ ਪੋਲੀਸੈਂਟਰਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਈਚ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਆਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਟੋਮਿਕ ਔਰਬਿਟਲ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ठीक है बच्चे, द वैल्यू ऑफ साइज obtained by approximation called the linear combination of atomic orbital। इनकी आप ठीक है किंदे नाल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ इट इज फाइंड बाय यूजिंग लीनियर कंबीनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है बच्चे, नैक्सट अपने को थर्ड पोस्टुलेट है इनका ही। ठीक है बच्चे, थर्ड पोस्टुलेट ईच साइज एसोसीएटेड विद द डेफिनेट एनर्जी। ठीक है, जोड़ा साई होगा उनकी अपने को डेफिनेट कोई ना कोई एनर्जी की वैल्यू होगी। ठीक है, विच कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इनकी वेव इक्वेशन की हेल्प नाल आपां फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को जो साइज उनके अपने को साइज स्केयर डीटा रिप्रजेंट करता सी प्रोबेबिलिटी, इनके भी साइज स्केयर डीटा रिप्रजेंट करता प्रोबेबिलिटी नूं। ठीक है, उनके भी अपने को जो इलैक्ट्रॉन्स है टेंड टू इनके भी जिवें उनके अपने को इलैक्ट्रॉन किद्दां फिल होंदे सी एटम्स दे विच 5 प्रिंसीपल नूं फॉलो करके, पॉली एक्सक्लूजन, हर्ट्ज रूल। ठीक है, इनदे विच भी सारे रूल फॉलो करनगे अपने को पॉली एक्सक्लूजन, हर्ट्ज रूल। ठीक है, इस भी सारे की करनगे फॉलो होणगे बच्चे। ठीक है, दैन उस तो बाद की है अपने को इलैक्ट्रॉन मूविंग इन द मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो इलैक्ट्रॉन की स्पिन होगी इधर +1/2 होगी या -1/2 होगी। ठीक है बच्चे, तो ये सीगा बेसिक आइडिया ऑफ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है बच्चे, नैक्सट है लीनियर कंबीनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। इनकी फुल फॉर्म की है, लीनियर कंबीनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नेशन ऑफ एटॉमिक
ऑर्बिटल, ठीक है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इनकी शॉर्ट फॉर्म की है LCAOMO, ठीक है। इट इज़ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 100 चों 99% की आ जाता होंगे, ठीक है। लीनियर कंबीनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच। तो बच्चे आप अप्लाई किंदे ते करनी है ये, ठीक है, ये आप अप्लाई करनी है H2 पॉजिटिव सिस्टम ते। बच्चे तुहानू याद होएगा कि ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है। बच्चे जो पिछली थ्योरी सी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वो आप अप्लाई की सी H2 सिस्टम से। मैं तुहानू कहा सी याद रखियो, ठीक है। जी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी H2 पॉजिटिव ते आपां लगानी है। H2 सिस्टम की सी 2 इलैक्ट्रॉन सिस्टम सी, H2 पॉजिटिव की है इट इज़ 1 इलैक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है बच्चे। कि अपने को 1 इलैक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। इनके आप की डिस्कस करना है, इनके बच्चे की है अपने को कि जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है दे कैन बी, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिटल बाय यूजिंग द LCAO अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिकुलर ऑर्बिटल कितों बनते हैं? फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल तो, यूजिंग LCAO अप्रोक्सीमेशन, ठीक है बच्चे। इनके आप सिस्टम की कंसीडर किया? H2 पॉजिटिव सिस्टम कंसीडर किया। H2 पॉजिटिव सिस्टम के विच की है 1 इलैक्ट्रॉन है, ठीक है, इट इज़ 1 इलैक्ट्रॉन सिस्टम। 1 इलैक्ट्रॉन के विच अपने को की है एक इलैक्ट्रॉन इत्थे भी है, ठीक है, H2 है, एक ए है, एक इत्थे की B है, ये H ए हो गया, ये H B हो गया, ठीक है बच्चे। आ इलैक्ट्रॉन है वो ए नाल भी इंटरैक्ट कर सकता है, बी नाल भी इंटरैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैं तुहानू पहलां भी आपां सिस्टम डिस्कस किया होया H2। इनका जोड़ा अपने को रेडियस आ डिस्टेंस होएगा वो R होगा, ठीक है। इनके नाल जिहड़ी इंटरैक्शन हुंदी है वो RA1, इनके नाल जिहड़ी इंटरैक्शन हुंदी है वो RB। इलैक्ट्रॉन की इंटरैक्शन ए नाल, इलैक्ट्रॉन की इंटरैक्शन बी नाल, ठीक है। उनका डिस्टेंस RA RB। तो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ हाइड्रोजन एटम है उन्होंने कंसीडर कर लिया HA ਤੇ HB, ठीक है। वैन इलैक्ट्रॉन इज नियर द न्यूक्लियस ए, ਆਪਾਂ कंसीडर करने कि जो इलैक्ट्रॉन है ए ਦੇ न्यूक्लियस ਦੇ ਨੇੜੇ है, दैन इट इज़ अपने को की है कि दैन इनका इफैक्ट खत्म हो जाना है, दैन ठीक है। इन्फ्लुएंस इफैक्ट ऑफ बी इज स्मॉल, इट कैन बी नैगलीजिबल। इनू आप नैगलीजिबल कर सकते हैं उस टाइम पर सिर्फ वेव फंक्शन, उस टाइम पर जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो सिर्फ कंट्रीब्यूशन किंदी होगी सिर्फ साई ए दे नाल। जो इलैक्ट्रॉन है जो बी के न्यूक्लीयस के इफैक्ट में है, ए का इन्फ्लुएंस बहुत स्मॉल है, तो उदो पूरा टोटल वेव फंक्शन की होगा साई बी के इक्वल, क्योंकि ए का इन्फ्लुएंस है नहीं। वैसे टोटल वेव फंक्शन को आप किद्दां लिखांगे? दोनों का जो इन्फ्लुएंस हो C1 साई ए, C2 साई बी, ठीक है। ये अपना ये आप प्लस का साइन ਤਾਂ लिया लीनियर ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ करते पे हाँ। ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਤਿੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, C ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੂਰੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ C1 C2। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। C1 ਸਕੇਅਰ C2 ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ। ਫੁੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ n ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 1, ठीक है बच्चे। तो अपने को की है टोटल, ये अपने को टोटल वेव फंक्शन की वैल्यू है जो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। हूँ जिवें आप कहा सीगा कि जो एक कंट्रीब्यूट करता है तो सिर्फ साई कितने इक्वल होएगा? C1 साई है, ठीक है। जे अपने को दूजे का इफैक्ट घट होएगा। हूँ आप ये अपने को वेव फंक्शन राइट कर लिया आप। हूँ आप एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बच्चे। बच्चे देखो एनर्जी तुहानूं पता ही है कि एनर्जी का फार्मूला पोस्टुलेट 4 के अकॉर्डिंगली की होंदा है, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी साई एच कैप साई डी ओवर माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी साई स्केयर डी। देखो बच्चे साई की वैल्यू आपां नूं इत्थों पता चल गई आ चीज़ तो, ठीक है। साई की वैल्यू पता चल गई आपां नूं इत्थों। तो आपां नूं हुण आ एनर्जी फाइंड करने लई साई हैगा, सिर्फ की पता चाहिए? हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन वैसे तो आप पिछे किया है H2 पॉजिटिव सिस्टम बारे, इतने दोबारा फिर डिस्कस कर लें। हैमिल्टोनियन की होंगे माइनस ऑफ एच स्केयर ओवर 8 पाई स्केयर एम डेल स्केयर प्लस वी। बच्चे जो पोटेंशियल एनर्जी V की वैल्यू सारे इंट्रैक्शन टर्म आ जाती हैं, जिवें 3 इंट्रैक्शन टर्म सीगियां
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟਰਮ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਈ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ ਆਰ ਏ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਈ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ ਆਰ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ ਈ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਮਿਲਟੋਨੀਅਨ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਡੈਲ ਸਕੇਅਰ, ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਈ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ ਆਰ ਏ, ਈ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ ਆਰ ਬੀ प्लस ऑफ ई स्केयर ओवर आर। ठीक है बच्चे, दिस इज द हैमिल्टोनियन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आप इत्थे पुट करांगे आ इक्वेशन साई की वैल्यू पुट करांगे तो अपने को एनर्जी की वैल्यू आ जाऊगी। तो जी एनर्जी है, ठीक है बच्चे, हुण इत्थे ई एनर्जी दे विच आ साई की वैल्यू पुट कर दो। साई की वैल्यू की है C1 साई 1 ए, C1 साई ए प्लस C2 साई बी। आ साई की वैल्यू इत्थे होगी। नैक्सट की है अपने को एच कैप। ठीक है बच्चे, इत्थे लिख लिया एच कैप, फिर पुट करती C1 साई ए प्लस C2 साई बी। ठीक है बच्चे, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। नीचे हैगा अपने को साई स्केयर C1 साई ए प्लस C2 साई बी का स्केयर डीटा। ठीक है बच्चे, तो ये होगी एनर्जी की वैल्यू। हजे आप एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की। जी एनर्जी है बच्चे ये कादा फंक्शन है फिर। ठीक है, एफ ऑफ C1 ते C2 का। ठीक है, जी एनर्जी है कादा फंक्शन है कि किहड़े कोएफिशिएंट है C1 ते C2। इन्हां दी वैल्यू आप किद्दां फाइंड आउट कर सकते हैं जे आप सी डेरीवेटिव लईए तो डेरीवेटिव नूं की पुट कर दईए 0। ठीक है, सॉरी। ठीक है, डेरीवेटिव ले लीए आप तो डेरीवेटिव नूं 0 पुट कर लीए तो आप एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जिवें विद रिस्पैक्ट टू C1 पुट करांगे 0, एक इक्वेशन आ जाऊगी। फिर जो आप वाला फार्मूला लगावांगे आ चीज़ लगावांगे अपने को दूजी इक्वेशन आ जाऊगी। ठीक है बच्चे, ये दोनों इक्वेशनस तो अपने को इन्हों सॉल्व करांगे। इत्थे 2 इक्वेशन आ जाएंगे, इन्होंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करांगे अपने को C1 ते C2 की वैल्यू आ जाऊगी। ठीक है बच्चे, तो जी अपने को C1 ते C2 की वैल्यू है वो आप पुट करके साई दे विच साई का की सीगा साई की आ वैल्यू सी C1 ते C2 की वैल्यू इत्थे पुट करके अपने को की आ जाऊगा टोटल वेव फंक्शन साई। ठीक है बच्चे, तो हम नैक्सट आप फाइंड आउट एक्चुअल दे विच C1 ते C2 की वैल्यू करनी है। किद्दां करांगे आप वही चीज़ ले लाँगे। आप कहांगे कि वैन द इलैक्ट्रॉन इज नियर टू न्यूक्लियस ए, जो अपने को की है इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस ए दे कोल है, वैन इलैक्ट्रॉन इज नियर टू न्यूक्लियस ए। ठीक है, जो इलैक्ट्रॉन ए दे कोल है उस टाइम ते की है बी का इफैक्ट है नहीं गा। उस टाइम के उत्ते की होएगा अपने को C1 की जी वैल्यू है वो तो फुल होगी क्योंकि C1 कंट्रीब्यूशन है। C1 तो फुल ही कंट्रीब्यूट करूँगा क्योंकि ए दे कोल इलैक्ट्रॉन जी C2 की वैल्यू है वो कोई जोड़ा बी है उनकी कंट्रीब्यूशन स्मॉल है, इस करके C2 की वैल्यू की होगी 0। ठीक है बच्चे, इदा ही जो आप दूजा ले लीए वैन इलैक्ट्रॉन इज नियर टू न्यूक्लियस बी, जो इलैक्ट्रॉन बी दे कोल है वैन इलैक्ट्रॉन इज नियर टू न्यूक्लियस बी टू न्यूक्लियस बी, जे बी दे कोल इलैक्ट्रॉन उस टाइम ते की होएगा C2 की फुली कंट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, जो बी इनके कोल है इनकी फुली कंट्रीब्यूशन होगी 1, जी C1 है ये की होएगा 0। ठीक है बच्चे, तो जे हुण आप इनका स्केयरिंग कर दिए अपने को साई की सीगा C1 साई ए प्लस C2 साई बी। ठीक है, जिनकी स्केयरिंग कर दिए तो आपको स्केयर की रिप्रजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या इलैक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलैक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी। तो अपने को की आऊगा क्योंकि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं तो इतने जोड़ा भी साई है मॉलिकुलर ऑर्बिटल का ही वेव फंक्शन है। इनकी स्केयरिंग कर दो बच्चे, स्केयरिंग करके की आओ ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab, तो ए का स्केयर बी का स्केयर ठीक है तो 2ab।
ठीक है बच्चे, तो अपने को जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਡੀਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 1 ਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ C1 ਸਕੇਅਰ ਸਾਈ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ C2 ਸਕੇਅਰ ਸਾਈ ਬੀ ਸਕੇਅਰ प्लस 2 C1 C2 साई ए साई बी डी टाओ इट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ। C1 ਸਕੇਅਰ ਸਾਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ 1 2 3 ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਲ ਡੀ ਟਾਓ ਵੀ ਆਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ C1 ਸਕੇਅਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ C2 ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 2 C1 C2 ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊ। ਸਾਈ ਏ ਸਾਈ ਬੀ ਡੀ ਟਾਓ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ 1, ਇਹਦੀ ਵੀ 1, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ C1 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ C2 ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ S, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, A ਤੇ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, S ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰਲੈਪ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਵਰਲੈਪ ਇੰਟੈਗਰਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ S ਕੀ ਹੈ, S ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 2 C1 C2 S, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ S ਮੂਰੇ 2 C1 C2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਅਰ S ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈ ਏ ਸਾਈ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਾਈ ਏ ਅਤੇ ਸਾਈ ਬੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜ਼ੀਰੋ ਓਵਰਲੈਪ ਫੋਰ ਜ਼ੀਰੋ ਓਵਰਲੈਪ ਇੰਟੈਗਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ, S ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 0। ਜੇ S ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ C1 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ C2 ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ A ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ B ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਫ ਦੇ ਇਕੁਅਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ C1 ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C2 ਸਕੇਅਰ, ਤਾਂ C1 ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ C2 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ C1 ਅਤੇ C2 ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। C2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ C1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ C1 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ C1 ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, 2 C1 ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ C1 ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 1/2। C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1/√2। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ C2, ਕਿਉਂਕਿ C1 ਅਤੇ C2 ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ 1/√2 ਤਾਂ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ 1/√2। ਜੇ C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ C2 ਦੀ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1/2 ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਮੂਰੇ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ 1/√2 ਸਾਈ ਏ ਪਲੱਸ 1/√2 ਸਾਈ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ 'ਚੋਂ 1/√2 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈ ਏ ਪਲੱਸ ਸਾਈ ਬੀ। ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ 1/√2 ਸਾਈ ਬੀ, 1/√2 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਈ ਏ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਦਿਸ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਦਾ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल। ठीक है बच्चे,
ਉਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਰਿਪਰजेंट करता है, वो एंटी बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करता है। these are the wave function for the H2 positive system by using LCAOMO approach। ठीक है बच्चे, ठीक है, by using LCAOMO approach। बच्चे ये ठीक है, अपने को सीगा वेव फंक्शन, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੋਰ H2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ LCAOM ਅਪਰੋਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਾਈ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੋਰ H2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ LCAOM ਅਪਰੋਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਓਵਰਲੈਪ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਲੈਪ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਨ ਓਵਰਲੈਪ ਇੰਟੈਗਰਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਇਫ ਓਵਰਲੈਪ ਇੰਟੈਗਰਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਵੈਨ ਐਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, C1 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2C2 ਸਕੁਅਰ 2C1 C2, ਇੱਥੇ ਐਸ ਸੀ, ਆਪਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਐਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਵੈਨ ਐਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਨ ਓਵਰਲੈਪ ਇੰਟੈਗਰਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਵੈਨ ਐਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰਲੈਪ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਬੁੱਕ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੈਨ ਓਵਰਲੈਪ ਇੰਟੈਗਰਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਓਵਰਲੈਪ ਇੰਟੈਗਰਲ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਨ C1 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ C2 ਸਕੁਅਰ 2C1 C2 ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਫੁੱਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। C1 ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C2 ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਫੁੱਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। C1 ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ C2 ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ C1 C2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਦੋਂ C1 ਮਾਈਨਸ C2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ C1 C2 ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ C2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ C1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। C1 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ C1 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2C1 C1 ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2C1 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2C1 ਸਕੁਅਰ ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਾਮਨ, 2C1 ਸਕੁਅਰ 1 ਪਲੱਸ ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਇੱਥੋਂ C1 ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, C1 ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 1/2 1 ਪਲੱਸ ਐਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਪਲੱਸ 1, C1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਦਿਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਹੈ, C1 ਤੇ C2 ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ C1 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ C1 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਆਫ 2 C1 ਐਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ C2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਨਸ C1। ਠੀਕ ਹੈ, C2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਈਨਸ ਆਫ C1, C2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ C1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਨਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ C2 ਨੂੰ C1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ C2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਆਫ C1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 2C1 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2C1 ਸਕੁਅਰ ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ 2C1 ਸਕੁਅਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਇੱਥੇ C1 ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, C1 ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ 1/2 ਆਫ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1/2। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ C2 ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ C2 ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ठीक है। जे आप प्लस माइनस साइन इग्नोर करते हैं तो अपने को दो वैल्यू है, एक इत्थे अपने को आ जाता है 1 माइनस एस, ठीक है, इत्थे आ जाता प्लस, ठीक है। जे आप इनका पॉजिटिव चूज करिए क्योंकि ये भी प्लस माइनस के है, भी प्लस माइनस के है, ठीक है। जो तो आप दोनों वैल्यू आ चूज करते हैं C1 तो C2 दोनों इक्वल है ना, तो जे आप इत्थे साई दे विच पुट करिए C1 साई ए प्लस C2 साई बी, जे तो आप आ वाली वैल्यू चूज करते हैं प्लस वाली, C1 की भी आही वैल्यू है, C2 की भी आही वैल्यू है, तो आ बाहर अंदर आ जाऊगा, अंदर की आ गया साई ए प्लस साई बी, ठीक है बच्चे। तो जे आप आ वाली वैल्यू चूज करते हैं दोनों की, C1 की भी तो C2 की भी, C1 की भी आही हैगी, C2 की भी आही चूज करते हैं, तो अपने को की आ जाऊगा साई, इत्थे बस प्लस की जगह माइनस आ जाऊगा साई ए प्लस साई बी। दीज आर द वेव फंक्शन, ए प्लस का वै, ठीक है, इत्थे माइनस ले लो क्योंकि माइनस का साइन लिया से आपां, ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। बच्चे अपने को वेव फंक्शन आ गए बॉन्डिंग ते एंटी बॉन्डिंग दे फॉर H2 पॉजिटिव सिस्टम वैन ओवरलैप इंटैग्रल, वैन ओवरलैप इंटैग्रल इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जो ओवरलैप इंटैग्रल 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है बच्चे। तो जो 0 के इक्वल होया उस टाइम तो अपने को आ वेव फंक्शन थे, उस टाइम तो अपने को किहड़े ए वाले थे, ठीक है। वैन ओवरलैप इंटैग्रल एस इज इक्वल टू 0, जो एस 0 नहीं है उस टाइम तो आ वाले इन्हों एस आ रहा है, ठीक है, बॉन्डिंग भी तो एंटी बॉन्डिंग भी, इन्हों एस नहीं आएगा, ठीक है बच्चे। आह बॉन्डिंग का आ एंटी बॉन्डिंग का सी माइनस वाला, इधर बॉन्डिंग वाला सी प्लस वाला, ठीक है बच्चे। आपां नूं इदां ही क्वेश्चन आंदा हुंदा कि डिस्कस द वेव फंक्शन फॉर H2 पॉजिटिव सिस्टम यूजिंग LCMO अप्रोच वैन ओवरलैप इंटैग्रल इज नॉट इक्वल टू 0, जां आंदा हुंदा ओवरलैप इंटैग्रल इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, जो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो तुसीं सारा इत्थे तक करना है, पिछला भी करना है, ये भी करना है, जे कुछ नहीं किया होगा फिर इत्थे तक ही बहुत है, ठीक है बच्चे। तो जे आप आ वेव फंक्शन लैके एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो वो एनर्जी की वैल्यू आ जाती है अपने को 268 तो बॉन्ड डिस्टेंस आ जाता 106, एक्चुअल जी एनर्जी है वो होंगी है 171 तो 132, तो बच्चे कहते जी वैल्यू है दोनों आपस में एग्रीमेंट है, जो होर करैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैन वी अपलाई अप्रोक्सीमेशनस, बट आपको लोड़ नहीं अपलाई करने की, दीज आर एग्रीमेंटल वैल्यू। तो जो आप ग्राफ बनाइए एनर्जी का, ठीक है, वो किद्दां बनता कुछ इस तरह का बन जाऊगा, ठीक है बच्चे। इत्थे बॉन्ड इत्थे जी एनर्जी है इनके कोरसपोंडिंगली वो हैगी 268 और जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो है 106 पिकोमीटर, ठीक है बच्चे। एंड दीज आर एग्रीमेंटल विद ईच अदर, ठीक है। सो दिस इज द वेव फंक्शन फॉर द, दिस इज द LCAOMO अप्रोच टू H2 पॉजिटिव सिस्टम, ठीक है बच्चे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान नाल कर लियो।